सहनौ नो भुनक्तु भुनक्ति सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः शान्तिः हरि हरि ओम। ओम्। तो महाराज। आज का जो है ये विवेक चूड़ामणि से है ना। जी महाराज। जी और महाराज। ये कौन केवल केवल कक्कर करेंगे। जी जी महाराज। अच्छा ओके, बहुत दिनों बात कर रहे हो, पहले किया था, कब हाँ किया जी। था। महाराज जुलाई में ही किया था सर। जून एंड या अभी जुलाई। अभी रिसेंटली किया था। इसका विवेक चूड़ामणि स्टार्ट मैंने किया था महाराज 1 to 50। ओ कब किया था वो। दैट वाज एंड जून आई थिंक, एंड मिड एंड जून और अच्छा ओके। हाँ ओके। मे आई स्टार्ट महाराज। हाँ ओके। I seek the blessings of Thakurji Sri Guru Maharaj before I commence today's summary. I also bow down before Bhagwan Shankaracharya for gifting this unique Prakaran Granth Vivek Chudamani to humanity. Next, I bow down to our Shiksha Guru, Revered Swami Brahmeshanandji Maharaj, for guiding and mentoring us on this spiritual class. Summary of Vivek Chudamani, verse 367 to 417. I will be doing it in two parts. Part 1 will take 8.5 minutes. Part 2 will take 6.5 minutes. Total 15 minutes. Vivek Chudamani has 580 verses. Till now, we have discussed up to verse 366. Today, we will discuss next 50 verses from 367 to 417. Till now, Bhagwan Shankaracharya has taken us step by step from importance of human birth till the fruits of Nirvikalp Samadhi. We have been told how avidya, or the illusionary Maya, is a Trigunatmak Shakti of the Lord. It is without a beginning. It is from Anadikal. But it can be brought to an end when a person gets steady realization in Samadhi. The process of bondage or binding has been explained. First, tamas or tamagun is the wheeling power which prevents us from seeing the reality that is the Atma. How? By covering it. It covers the glorious and infinite self with its power of ignorance. Next comes Rajas, in tandem, immediately after Tamas, Rajagun. Rajagun comes into play as soon as the splendor of self is hidden from the view by Tamagun. It projects what is not self as the self. It projects Anatma as the self after Atma has been covered by Tamas. Thus, the human being starts falsely identifying himself with the body-mind complex, which is in reality the non-self. The point to remember is that this bondage is notional, it is illusory, it is based on agyan. Our identification of self with the body, mind, intellect, and ego sense is an illusionary phenomena, and this bondage can be removed by Saswarup Avabodhanam, by knowing our true self. So the first few steps towards untying ourselves from this bondage are: 1. Control of speech, Vani Sanyam. 2. Non-receiving of unnecessary gifts, Aparigraha. Third, no expectation, Nirasha. Third, giving up all desire-born activities, Niriha. And fifth, retiring to a place of solitude, Ekanta Shilta. Retiring to solitude helps us in keeping our sensory energies in check, since there is no external agencies to stimulate our sensory desires. Revered Swami Ranganathan Maharaj says, while explaining these verses in Vivek Chudamani, that in spiritual life, we have to travel light. This baggage of sensory world, this attachment towards family and the world must be reduced. Importance of Vivek and Vairagya. If we have to achieve the lofty heights of Mukti and Samadhi, then we need to spiritually fly high like a bird with the two wings, namely Vivek and Vairagya. Using Vivek, observing the fleeting, impermanent,
joys of the sensory world, we have to do this. First, Shama. Calm down and rest your mind on the goal of Brahman in an atmosphere of solitude. Next, Dama. Detach the mind from the sense objects. Pull all your 5 karma indriyas, 5 jnana indriyas back to their golak or the control centers in the mind. So the process of withdrawal will be like this. First, restrain sense organs in mind. In the mind, all the random conflicting thought modifications are filled. It is a seat of sankalpa vikalpa, conflicting options. So restrain the control centers of organs here. Next, restrain the mind in buddhi. Buddhi is also part of antakaran, but it has determinative faculty. It has the ability to discriminate, to evaluate. So use these faculties of buddhi to calm down the emotional mind and don't let the sense organs get activated again. Third, using vairagya, give up external attachment to sense objects. Also, give up internal objects for internal attachment to man, buddhi, ego, and chittam. Chittam here is the place where all impressions are being recorded, all the mental activities are being logged. Fourth, be a witness. Be a witness to all the activities of antakaran and merge yourself in the infinity. Give up the thought of non-self and all its limiting adjuncts like body, organs, pranas, egoism. Know it that all these only produce evil and misery. So give up the non-self and think of the self, the bliss absolute, the knowledge absolute, fixing the purified mind on the self. What is a picture? It is clay plus name plus form. What is jar? It is again clay plus name plus form. So what is the essential substratum in both of these? It is the clay itself. Similarly, all this universe, known through speech and the mind, is nothing but Brahman. There is nothing but Brahman alone pervading the universe. Upanishads like Katha Upanishad, Brihadaranya Upanishad, Mundak Upanishad, Chandogya Upanishad all declare one and the same thing unequivocally, that this dualistic universe is only a delusion from the standpoint of absolute truth. Atma is the Jiva at an individual level. Atma is Ishvara at the creator level. Atma is Brahman at the universal level. Thus, all is Brahman and Brahman alone. And this conception of universe is merely a phantom. Brahman is changeless, formless, absolute. Thus, the wise man realizes in his heart through samadhi that the infinite Brahman is eternal knowledge, absolute bliss, and it has no exemplar, free from activity, limitless, indivisible, absolute. ज्ञानी व्यक्ति समाधि के समय अपने हृदय में उस पूर्ण ब्रह्म का अनुभव करता है जो अजर है, जो अमर है, जो ऐसी वस्तु के स्वरूप वाला है जिसके सारे अभाव दूर हो गए हैं, जो समुद्र के समान शांत है, जो नाम रहित है, जो गुण दोष रहित रूपी विकारों से रहित हो गया है, जो शाश्वत है और शांत है. Now I commence my part 2, which is a summary of all of the 50 verses grouped into 4, 4, 5, 1. And for this, I have used artificial intelligence and later on edited it. These verses of Vivek Chudamani by Shankaracharya emphasize the path of self-realization, which is the realization of absolute reality Brahman. Verse 362 to 365. These verses discuss the progression of samadhi from savikalp to nirvikalp stage, leading to realization of the blissful state of Brahman. Through nirvikalp samadhi, desires are destroyed, and one experiences the spontaneous manifestation of one's true nature. Verse 366 to 368, the importance of self-control, detachment, and living in seclusion is highlighted. The aspirant is advised to focus on calming the mind. Control of mind leads to the realization of
bliss of Brahman. Verse 369 to 373, the process of restraining the speech, controlling the senses, and ultimately merging the mind in the absolute self is described. Dispassion and discrimination are emphasized as essential for attaining liberation. Verse 378 to 380, the focus on Brahman as the self and the importance of realizing this self-effulgent witness within are discussed. By reflecting on the Atma, one can attain steady realization. Verse 381 to 385, the process of identification with the infinite self and letting go the egoism and limiting adjuncts is explained. The analogy of the sky and its limitless nature is used to describe the reality of Brahman. Verse 386 to 391, the unreality of limiting adjuncts and the universe is emphasized. Everything is Brahman and the universe is merely an illusion superimposed on the self. Verse 392 to 396, the scriptures declare the absence of duality. The Brahman is described as pure, absolute, and unchanging. By realizing the self as Brahman, an aspirant becomes free from suffering and bondage. Verse 397 to 402, the oneness of supreme reality is stressed and the diversity is seen merely as an illusion. The talk of diversity does not apply to the changeless Brahman. Verse 403 to 410, the apparent universe is considered a delusion from the standpoint of absolute truth. The verses emphasize the dissolution of the mind through samadhi to realize the infinite Brahman, which is eternal, blissful, and beyond limitation. Verse 411 to 414, through samadhi, an individual beholds the infinite glory of Atma within himself. Bonds created by the impressions of previous births are cut off. Once the body is discarded, it only remains visible as a shadow. Identification of body is relinquished. Verse 415 to 417, having realized Atma, the wise person remains unaffected by whether the body falls or continues to exist, as his mind rests in the essence of bliss. The knower of truth no longer harbors attachment to the body. It becomes insignificant in comparison to eternal self. Therefore, to conclude, these verses emphasize the path of self-realization to experience the absolute reality, Brahman. The idea of letting go of attachment to physical body and identifying with the eternal self is discussed. By practicing samadhi and self-realization, one can free oneself from the cycle of birth and death, realizing one's true nature as infinite and blissful Atma. Before I end this summary, one would like to go back to the basic question arising in the sadhak's mind after listening to all these verses. The question comes, how can we realize all this, what we just read and heard in Vivek Chudamani? For this, let me quickly recall what Bhagwan Shankaracharya advises us in the beginning itself in verses 16 and 17. He is exhorting all of us to strive and become Adhikari Purusha, one who can become capable and fit recipients of the knowledge of Atma. I quote, Medhavi Purusho Vidvan Iha Apoha Vichakshanam. Become Medhavi, become Vidwan, become capable of absorbing the central message, the core teachings of this Granth. Vivekino Viraktasya Shama Adi Gunashalinah Mumukshorevati Brahma Jigyasa Yogyata Mata. Develop Vivek, develop Vairagya, develop Mumukshatva, equip yourself with the sixfold virtues, Shama, Dama, Uparati, Titiksha, Shraddha, and Samadhan. In the end, I pray at the lotus feet of Thakurji, Ma, and Swamiji to help us all in this wonderful, joyful, and adventurous journey of self-uncovering, self-awareness, knowledge of the Atma. I once again thank Revered Swami Brahmanishanandji Maharaj for giving me this blessed opportunity to learn and present this Sunday summary. Thank you all for patiently listening. Shri Ram Krishna Arpanamastu. Thank you. Done it very well. Very well. Thank Very you, Maharaj. nicely done. We are tempted to give you more chances like this. So others will be deprived. So very difficult. Ji Maharaj. Ji Maharaj. Okay. So shall we start the questions?
questions we can start. जी महाराज So, क्या नाम? Subir Majumdar, are you ready? Yes, Maharaj ji. Because you have to go. As a matter of fact, I have also to go. 10:30 तो मैं चला जाऊंगा. तुमको 10 बजे जाना है ना? जी महाराज. अच्छा, उससे चलो. थोड़ा पहले. Maharaj, in Shlok 369 of Vivek Chudamani, there is mention of restraining speech. In the footnote, it mentions restraining speech is equivalent to restraining of all sense organs. What does that mean? No, it How is is it not equivalent. तुमने नहीं देखा footnote. You are wrongly quoting the footnote. हाँ, तो it's not equivalent. It is inclusive. Is it? Implies. Okay. Then it makes a world of difference. Bill, हाँ, I understand. वो ये equivalent नहीं है. Restraining speech should be read as restraining all senses. Implies. Okay. हाँ, मतलब ये है कि सभी इंद्रियों को संयम करो. बिल्कुल. Now So, the matter, it becomes all right. yes, now it sounds all right. Restraining हाँ, speech and all other sense organs. Yes. हाँ, और other senses इसको करोगे तो आपको that is important. हाँ. Right. ठीक है महाराज. Hmm. The other question, Maharaj. In Shlok 394, the opening sentence is, what is the use of dilating on the subject? While discussing Brahman in the next few lines, why does he make this opening statement कि इस पे और क्या चर्चा करना है और इसके बारे में क्या बोलना? हाँ, मतलब ये है कि देखो अन्य बातों की क्या आवश्यकता. अन्य वाचा, अन्य जीव ब्रह्म है, ये जगत भी ब्रह्म है. ये बाकी जब जितनी चीजें हैं ये कुछ नहीं है, सब ब्रह्म ही है. इससे अधिक क्या बात करना चाहिए? What is the use of talking of anything else? That is the conclusion. Okay. If that conclusion is reached and you are fully established, why do you want to read the whole of Vivek Chudamani? Why do you want to read the whole of Upanishad? अरे ये जगत जो है वह ब्रह्म है, जीव जो है वह ब्रह्म है. That is the conclusion. That is the final conclusion. What else do you know? That is the point. Right. But since we are not able to do it, that's why we are doing a pura whole meeting on Vivek Chudamani and so much of other things, so much of Upanishads, etc. Because we are not able to establish in that. We are not able to fully get settled in. Right. That is Maharaj. the point. ठीक है महाराज. That's all Maharaj. प्रणाम महाराज. Ritu Ghosh are there. Are you there, Ritu? Pranam Maharaj. My first question is from the text, the Shrutis themselves declare that this dualistic universe is but a delusion from the standpoint of absolute truth. There is also experience in the state of dreamless sleep. My question is, in dreamless sleep, there is no feeling at all. How one can feel that there is nothing but Brahman or one with him? तुम्हारा क्या है? ड्रीमलेस स्लीप में क्या होता है? जब कुछ भी नहीं होता है ना, ड्रीमलेस स्लीप, तो क्या होता है उस समय? कुछ होता है क्या? कुछ फीलिंग ही नहीं रहता है. नहीं, जब सो के उठते हैं उस सब क्या होता है? मैं बहुत अच्छा सोया था. हाँ, ये गहरी नींद हुई. जी, बड़ा सुख से सोया था. जी. There are two things there. One is when you return, I have a happy feeling. And secondly, I did not know anything. Ignorance. इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा. रिमेम्बर, इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा. प्रत्यभिज्ञा में जैसे हम रिमेम्बर करते हैं ना, अरे मुझे याद आ गया, अरे I had met you earlier, so I am remembering. But here technically it is called pratyabhigya. Is something that is a proof. The pratyabhigya is the proof that something is there. Okay. Otherwise, how could you remember it? I didn't know anything. I slept very well.
So there was a sort of experience. There was something. Ignorance was there, and Yes. bliss, happy feeling was there, isn't it? Oh, yes. Yes. And they cannot deny the two things. That there is a happy feeling, that's why I get up and very nice. And I want to sleep. Deep sleep I want. किसी को आदमी को deep sleep नहीं होगा तो he won't takes Yes. medicine. So tablet है, I mean the deep sleep में ignorance दे रहा है, लेकिन bliss is there. Yes. So both the things are there, and that is why he said this is called pratyabhigya. So that is Brahman. Something is existing. Mm-hmm. In deep sleep, Brahman is there. Only thing Okay. is because of ignorance we don't know. Oh, yes. Okay. Now your My question second, is that question clear? yes, clear. Because, yes, clear. My second question is, in sloka 409 and 4010, the wise man realizes in his heart through samadhi the infinite Brahman. So my question is, how the realized soul might feel when he sees Brahman all around? कैसा फीलिंग होता होगा जो अरे क्या बताएं, कैसे बताएंगे हैं? अभी तो बताया ना, एक तो डीप स्लीप में जैसा एक्सपीरियंस होता है ऐसा कुछ तरह का होता बहुत होगा. शांति जी Only thing is that deep sleep में there is ignorance, but in Brahman, in sleep there is Brahman experience, there is no ignorance. First one. ओके Second example जो बोल रहे हो कि everything is under water. और deep पानी में डूब जाओ. When you are go deep into the water, everything is under water. Everywhere Yes. there is water everywhere. That's one sort of thing. Otherwise, everything, third experience, third example. I'm just giving the example. We don't know what Yes. happens at the time of Brahman. हाँ All the people are wearing the same cloth. Oh, 1,000 people are there and all are yellow color. oh means there is no difference at all. कोई हाँ, 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 विभेद हाँ, हाँ, हाँ. कोई रंग का देखो, या ऐसा किसी है कि चीज का there भी is नाम रूप है. हाँ यानी लेकिन कपड़े पहने हुए अलग अलग प्रकार के लोग हैं, हाँ लेकिन एक ही रंग का कपड़ा है. एक ही रंग का कपड़ा है, एक ही व्यक्ति है, ऐसा भी? नहीं, व्यक्ति बहुत सारे हैं. अच्छा अच्छा हाँ. अच्छा हाँ. ठीक जैसे है. मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, पानी के अंदर. सभी पानी तो दिखता है. पानी के अंदर है लेकिन अलग अलग प्रकार के हैं. हाँ वहां पे मगर भी है, मछली भी है और कछुआ भी है. वो सब है, अलग अलग हैं, लेकिन सब पानी के अंदर. एवरीवेयर कवर्ड विथ वाटर. कवर्ड विथ वाटर. अच्छा जैसे अभी जो है हम वी आर आउट सिटिंग आउटसाइड, बट एवरीथिंग इज कवर्ड विथ स्पेस. आकाश के सारा कवर्ड है. तो टू दिस एक्सटेंट ओनली, यानी रियलाइज सोल माइट बी एक्सपीरियंसिंग लाइक दिस, वी डोंट नो. देयर आर वेरियस एक्सपीरियंसेस. ये विज्ञानी की अवस्था नहीं है जो सबको ब्रह्मन ही देखता है. हाँ वही तो. अच्छा. हाँ. महाराज कथामृत में ठाकुर जो कहते हैं सबको मोम के से ढका हुआ है. हाँ, मोम सब मोम का बना हुआ है. बना हुआ है. सबका ऐसे वैक्स का बना हुआ है सब. चलो कुछ नहीं तो कम से कम हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं, कम से कम इतनी बात तो हो जाती है उसके बारे में. मेरा प्रश्न हो गया. अच्छा प्रणाम महाराज. हाँ, अच्छा. प्रणाम महाराज. चंदन कुंडू. Maharaj, Pranam Maharaj. हाँ. Maharaj, Sloka 374. In this sloka, it is said that dispassion and discrimination both are required. But is it not self-evident? Is it possible to have one without the other?
In another context, we have discussed that true dispassion comes only through discrimination. No, देखो देखो ऐसा है, they are related, interdependent. Yes. Actually, what is your question and what is your suggestion? नहीं, क्वेश्चन महाराज ये है कि वैराग्य तो तभी आएगा जब विवेक जागृत होगा, तभी तो वैराग्य आएगा। ऐसा And जरूरी ये नहीं है। यार ये दोनों चाहिए, तो मेरा कहना है कि ये दोनों तो हमेशा ही एक साथ ही होते हैं। Not कोई necessary. ऐसे- हाँ, ये इंस्टेंस अगर मुझे समझा देंगे कि इसका अंतर क्या होता है, लाइक आई थॉट बोथ आर सेल्फ, मतलब एक साथ ही बोथ कम्स, मतलब बिना विवेक का वैराग्य, एक तो मरकट वैराग्य जैसे आपने बोला था वो होता है। हाँ। अदर देन दैट ट्रू वैराग्य, इज इट पॉसिबल विदाउट नहीं, विवेक? ट्रू वैराग्य नहीं, जैसा है कि आदमी को विवेक तो है, संसार के सब लोग समझते हैं कि जगत मिथ्या है, मर जाएंगे, एवरीथिंग गोइंग टू डाई, लेकिन किसी को वैराग्य नहीं होता। और हैव गॉट विवेक। ओके ओके। हाँ, यानी सब जानते हैं कि हम मरने वाले हैं, सब जानते हैं कि हम बीमार होंगे, हाँ उसको बताने की जरूरत है क्या? ना। देन स्टिल देयर इज नो वैराग्य। ओके। हाँ। तो मतलब अनफॉर्चुनेटली हाँ विवेक वैराग संबंधित तो हैं, लेकिन हाँ दोनों एक अलग भी रह सकते हैं। दैट्स द पॉइंट। तो ये हाँ हुआ। और दूसरा हुआ, वैराग्य हो गया है लेकिन वो बुद्धि नहीं काम करती। अरे मेरे को क्या लेना देना है, ये विवेक क्या कर रहे हो तुम? वो लाटू महाराज तो वो वैराग्य वैराग्य बढ़ा हुआ है, बस अब वो तुम विवेक करो ना करो, मेरे को क्या लेना देना है, फुल ऑफ वैराग्य। हम्म। तो बोथ कैन बी टुगेदर एंड बोथ कैन बी सेपरेट। हाँ, लेकिन लाटू महाराज का तो बिना विवेक, मतलब बिना ज्ञान शान का भी उनको तो रियलाइजेशन तो हो ही गया था। हाँ, तो नहीं, इन लेकिन वो हिज केस, इन हिज केस, वो विवेक की जरूरत ही नहीं, बिना विवेक के ही हो गया, हाँ, वैराग्य था पक्का। बट वो मतलब वो एक्सेप्शन ही हो गया एक तरीके से। हाँ, बट अगर लास्टिंग वैराग्य तभी पॉसिबल है जब इसका विवेक जागृत होगा। तो बट ऐसे विवेक point जागृत is होने कि से, विवेक सुनो, विवेक जो है वो बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, अच्छा, हाँ, दैट इज द पॉइंट। हम्म, ठीक महाराज, हाँ, ये वो था। बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है, किसी में विवेक ज्यादा होगा, किसी में विवेक कम होगा। हम्म लेकिन वैराग्य जो है वो दूसरी चीज है, थोड़ा दोनों में का मेरा डिस्कशन का पॉइंट ये है कि जनरली दोनों एक साथ रहते हैं, हाँ, लेकिन दोनों अलग भी रह सकते हैं। दैट इज द यस महाराज, समझ में आ गया। ठीक महाराज। हाँ। देन श्लोका 389, self is indivisible and all pervasive. Our idea of front and rear, up and down, are with reference to the body. Is it possible to realize the self so long as we are conscious of our existence as a body? क्या मतलब? when you realize yourself, at that time when you realize the self, you don't realize yourself as body. हाँ, तो अगर मैंने जब कर लिया महाराज, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस चला गया, सो उसमें देन हाउ कैन, व्हाट कैन बी द फ्रंट एंड व्हाट कैन बी द रियर, व्हाट कैन बी अप एंड व्हाट कैन बी डाउन? बॉडी तो है ही नहीं। No, for the time being, at that time there is only nothing but Brahman. अच्छा, But when you come down, हाँ, फिर तो मतलब तब उसके बाद में तो ठाकुर को भी बॉडी का एक एक्सपीरियंस होता है। हाँ, so this, when we say the self is within and self is without, that means at that point of time we are conscious of our body. In that reference only it can be within and without. यानी वो डिस्क्रिप्शन जब किया है तो इससे कि ब्रह्म जो है वो अंदर बाहर सब कुछ है, यानी हाँ, अंदर बाहर का आइडिया है, कॉन्शियसनेस ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड इज देयर, still there. Okay, महाराज। स्टिल। हाँ, अच्छा महाराज, ठीक महाराज। Then actually महाराज, these things are so subtle, सोचते हैं लगता है कि समझ भी रहा हूँ, फिर मतलब समझ में नहीं आता। महाराज जी, ये दुर्भाग्य ये है ना कि हम लोग कॉन्स्टेंटली वी आर लिविंग इन द सेम एक्सपीरियंस, सेम वे, we are all covered by the same situation,
यानी बाहर के जगत जो है ना वो वैसा कि वैसा हमेशा बना रहता है ना, थोड़ी देर के लिए हुआ, विचार हुआ, उसके बाद में अगेन बैक यू आर इन द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड रिमेन्स रियल टू अस. Hmm. Hmm. If for a moment world becomes unreal, that does not make any difference. Okay. Yes, Maharaj. Constantly it has to be there. महाराज जी, आप जो अंदर और बाहर श्लोक में बोल रहे हैं, तो उसमें ये एक एक्सपीरियंस है जो वो समाधि के बाद फील करता है. सो व्हेन ही कम्स बैक ही रिकॉल्स दिस एक्सपीरियंस कि ऐसा था, और इसीलिए शंकराचार्य बोल रहे हैं, बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम तो वो ये सोच भी नहीं सकता ना. नहीं 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 नहीं, दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती हैं. यानी जैसे कहा ना कि वैक्स का बना हुआ है. नहीं, बट ही कैन नॉट हैव एनी थॉट एट दैट टाइम ना. थॉट नहीं, प्रोसेस तो देखो देखो, सब सारा संसार जो ठाकुर बोलते हैं ना कि जैसे वैक्स का बना हुआ है सब कुछ, ऐसा देख रहा हूं मैं. यानी एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ ब्रह्मन with name and form. हाँ, yes, Maharaj. ये that is the thing. Yes. तो दैट्स एन एक्सपीरियंस. But name and form you do very clearly know that is unreal. Yes. यानी one is I have realized and now I say that name and form are there, Brahman I am not realizing. हम समाधि में चले गए, उसके बाद रियलाइज क्या है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है. फिर कॉन्शियस लेवल पे आ गए और आपको जगत दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि जगत ये मिथ्या है, अनरियल है. ये Yes. दिखाई दे रहा है मैं यही कह रहा था. ना. सेकंड नहीं, सेकंड लेवल है, जगत भी दिखाई दे रहा है और ब्रह्म भी दिखाई दे रहा है. ठाकुर का जैसे हो. जैसे है मोम का बना हुआ है, हाँ हाँ. Yes, तो Maharaj. नाम रूप भी बना हुआ है, मोम भी बना हुआ है. वाह वाह, ठीक. और तीसरा लेवल ये हुआ है कि फिर कुछ भी नहीं है, वो तो उसके बाद ब्रह्म ही है, ब्रह्म है, उसके बाद नहीं, बाहर जगत है ही नहीं. कॉन्शियस लेवल, यू आर नॉट लिविंग एट द कॉन्शियस लेवल. ये तो जब ब्रह्म के बाद में साक्षात्कार के बाद में जब कॉन्शियस लेवल पे आते हैं, तब ये फिर बातें होती हैं कि क्या होता है इस समय में, नाम रूप दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नाम रूप मिथ्या दिखेगा या सत्य दिखेगा. ये सब जब साक्षात्कार के बाद में फिर आते हैं, तब उसके ऊपर क्वेश्चन. तब विचार होता है. ठीक है. महाराज ठाकुर का जो तीसरा स्टेज है ना, भाव मुके, वो वही, मतलब उसमें हाँ, जगत हाँ, भी हाँ, दिख हाँ, रहा है और ब्रह्म भी दिख रहा है. ब्रह्म भी दिख बहुत रहा है. कठिन चीज है. हाँ. हाँ हाँ उसी से दे कैन इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड. हाँ. और अपने शारदानंद जी ने तो वो भाव मुझ के ऊपर ही बहुत 2 सुंदर चैप्टर बोला है. पूरे लिख दिए हाँ हैं. हाँ, लीला भाव प्रसंग एक मुके. में चैप्टर ही हाँ. लिखा है महाराज. 2 लीला प्रसंग में चैप्टर लिखते हैं. Yes, Maharaj. Next, Maharaj. Sloka 417. हम्म. It questions the motivation of the knower of truth to cherish the body. But in Kathamrita, Sri Sri Thakur said that after digging the well, one keeps the implements for the use of others. As the realized soul lives for the welfare of humanity, does he not care for the upkeep of his body? How do we reconcile both the standpoints? ना ना, ऐसा है कि वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी बिकम्स एब्सोल्युटली सेकेंडरी. याद रखिए, हाँ. वो एब्सोल्युटली सेकेंडरी. तो कुछ लोग ठाकुर ये तो बोलते हैं कि सभी लोग जो हैं वो खोद के बाद में सब रख लेते हैं अपने पास, तब थोड़ी लगते हैं. ना, फेंक देते हैं, कुछ अंदर ही लोग फेंक जो है देते वो हैं. फेंक देते हैं उसके अंदर, हाँ, कुएं के अंदर हाँ. फेंक देते हैं, हाँ, लेकिन कुछ लोग रख लेते हैं. So अच्छा. it is not at all a issue. That अरे is incidental. when you, जैसे बच्चे का खेल है, बच्चा बहुत रो रहा है, लेकिन पेरेंट्स के लिए क्या है, वो पतंग जो है इट इज एब्सोल्युटली नो वैल्यू, बट फॉर चाइल्ड इट इज ग्रेट वैल्यू. Yes, Maharaj. तो जो साक्षात्कार किसने कर लिया है ना, वो जगत बिल्कुल मिथ्या हो जाएगा, उसके लिए क्या करेगा. और ऐसा है कि ठाकुर ने ये बताया, लेकिन सच पूछा जाए ठाकुर ये भी तो कहते हैं और सब जगह बोलते हैं, वेदांत कहता है संसार जो है वो कुत्ते की पूंछ है ना, सीधा करो सीधी होती नहीं है, वैसी की वैसी रहती है. तो व्हाई गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू दिस. ठाकुर बोलते हैं कुछ लोग जो हैं वो खोदने के बाद रख लेते हैं, लेकिन दिस इज ए सेकेंडरी इशू, इट शुड नॉट बी गिवन ग्रेटर इम्पोर्टेंस.
महाराज इस श्लोक को एक बार मतलब संस्कृत श्लोक को पढ़ के मतलब समझा देंगे। इंग्लिश तो पढ़ रहे हैं, एक बार समझा दीजिए महाराज। बोलो। अखंडानंदम आत्मानं विज्ञाय स्वरूपतः किमिच्छन् कस्य वा हेतुर देहं पुष्णाति तत्त्ववित्। आत्मा को जानकर कि वही तत्व तक है, बाकी सब मिथ्या है, उसके बाद में किस इच्छा से वो देह का पोषण करेगा? देह तो यूजलेस हो गई है उसके लिए, जब एक बार आत्मा को जान लिया तो। दैट इज द आइडिया। व्हाट ऑब्जेक्ट, मतलब उनके लिए और कोई ऑब्जेक्ट तो रहा ही नहीं, मतलब। हाँ, ओके, ठीक महाराज, प्रणाम महाराज। अच्छा भुवन मित्तल, आपके प्रणाम तो महाराज क्वेश्चन भी जी। नहीं है। भुवन मित्तल, हाँ बोलो, चलो। हाँ जी, वर्स नंबर 386, इसमें लिखा है कि ब्रह्मा और ब्लेड ऑफ ग्रास आर, दोनों का रेफरेंस आया है। तो इसमें ब्रह्मा ऑब्वियसली यहाँ पे इज इट ब्रह्मा द क्रिएटर और ब्रह्मन? क्रिएटर 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 हाँ जी, ठीक है जी। क्रिएटर और ब्लेड ऑफ ग्लास दोनों उसके लिए बराबर, इतना बहुत भी हो जाए और एक सिंपल चीज हो तो। हाँ जी। अच्छा महाराज, वर्स नंबर, अगला क्वेश्चन है वर्स नंबर 417। ये अभी पूछ ही रहे थे आपसे, आफ्टर रियलाइजिंग वन सेल्फ व्हाई विल ही सपोर्ट हिज बॉडी? तो यही मेरा क्वेश्चन था कि shouldn't he support his body to serve others with the knowledge that Jeev is Shiv and वही to तो make मैंने others कहा ना, realize this? हाँ जी, वही तो कहा, डोंट मिक्स अप द टू कंसेप्ट। ठीक है जी। Let the realized soul realize, decide it, whatever he wants to. If wants necessary, he can give up of the body for the good of others. स्वामी विवेकानंद जो है, उन्होंने भी क्या किया, for the good of others he did, isn't it, स्वामी जी? But हाँ after जी, that, but वो तो बाद में क्यों स्वामी जी ने, why did he leave? स्वामी जी gave up his body of his own will, isn't it? हाँ जी, So why did he do it? He could continue to do good, what is very good. But he gave up the body. Out of fullness of heart, because they feel for the others. That's why they do it. We don't know what you see. He gave his body in spite of the fact that lot of suffering was nature in the world. So it is not necessary that someone should keep this body himself. Orthodox Vedantis जो हैं वो तो don't worry about these things. They give up the body. What is there? Pavari Baba did not do anything. He was a great Jnani. Did you get the answer or not? हाँ जी महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। हो गया? हाँ जी। शिवानी आ जाओ। जी महाराज प्रणाम। महाराज एक ही क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम श्लोका 367, that although I am very strict to take gifts, but still on very rare occasions, if we get, then what can be done? क्या क्वेश्चन है महाराज? क्वेश्चन ये है, इसमें गिफ्ट्स का बताया ना, नॉन रिसीविंग ऑफ गिफ्ट। हाँ जी, तो वैसे तो नहीं लेते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली बोला हुआ सब कुछ है, बट फिर स्टिल कई बार हो जाती है ऐसी सिचुएशन, लेना ही पड़ जाता है, तब उसमें क्या कर सकते हैं? तो क्या करना, बाध्य होकर करना पड़ेगा। देन डोनेशन, यू हैव टू गिव डोनेशन आल्सो। जो गिफ्ट आया उसको आगे किसी को पास ऑन कर सकते हैं? That can be done. That can be done. यही करता हूँ, कभी कभी करना पड़ता है तो मैं किसी और को पास ऑन कर देता हूँ महाराज। बस कर दो, क्या करना। डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स।
हाँ वो पता नहीं बर्डन कम लगता है फिर, तो हाँ, ठीक है। मुझे लगा मैं पूछ लेती हूँ क्वेश्चन महाराज से। अरे हमारी हालत बताएं, हम जब साधु बने थे तो तभी 2 बैग पूछा थे, महाराज आपसे। अब सारा एक कमरा बन गया है, भर गया है। हाँ, फिर छोटा छोटा कितना भी करो, कम करो, नहीं करो, नहीं करो, फिर भी हो जाता है, कुछ न कुछ होता जाता है, जी बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो महाराज बस यही क्वेश्चन था, फिर वो रिटायर्ड प्लेस वाला था तो वो समझ तो आ गया था कि लोनली प्लेस, बस लोनली थोड़ा प्लेस है। हाँ थोड़ा सा बस ये लग रहा था कि लोनली प्लेस कई बारी नहीं भी होती है, अब तब क्या क्या करेंगे, करें, वो क्योंकि क्या लिखा करेंगे। है ना ऑलवेज लिविंग इन अ रिटायर्ड प्लेस। हाँ, वो तो दूसरी बात होती है, तो इट्स नॉट, जितना हो सके रिटायर एकांत में रहने का कोशिश। ठीक है, दैट्स ऑल महाराज, प्रणाम। अच्छा, सतीश, सतीश विवेक भी नहीं है क्या? नहीं नहीं, प्रणाम महाराज में हूँ मैं। अच्छा, आ जाओ भाई, आ जाओ। अरे पिछले क्वेश्चंस भी हैं पिछले सेशन के, सॉरी अटेंड नहीं कर पाया, तो मैं सारे पूछ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, श्लोका 356, as per this shloka the boundary of transmigration can only be attained in nirvikalpa samadhi when the objective world, the sense organs, the mind, the very ego have been merged in the atma. Maharaj, in shloka 345 Shankaracharya says, perfect discrimination brought on by direct realization distinguishes the true nature of the subject from the object and breaks the bonds of delusion created by Maya. Maharaj, my question is, what is the technique? Does the realization takes place by discrimination or meditation on the self? Both are important. अकेले नहीं होता, केवल डिस्क्रिमिनेशन से नहीं होगा। अल्टीमेटली द माइंड हैज टू बिकम कंसंट्रेटेड, रेस्टलेस डिस्क्रिमिनेशन से नहीं होगा। एंड विवेक चूड़ामणि पढ़िए या जहाँ भी पूछते भी करिए, वहां पे श्रवण मनन निधिध्यासन कहते हैं ना। श्रवण मनन इज डिस्क्रिमिनेशन एंड निधिध्यासन इज कंसंट्रेशन या मेडिटेशन। व्हाट कंक्लूजन यू हैव कम टू, विचार करके ये देखा कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। अब इस ब्रह्म के सत्य के ऊपर पूरे मन को लगाओ। So meditation and distribution both are important. Right, Maharaj. इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराज, दैट इज पर्सनल, कि हम जो वर्ल्ड में रहते हैं, संसारी लोग हैं, हमारे लिए जो डिस्क्रिमिनेशन तो होता है लेकिन वो मेडिटेशन नहीं होता, तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए वेदांत में तो सन्यास के बिना काम नहीं चलता। जी महाराज, उसको फंडामेंटल बनाया है। जी महाराज, this is the second question, Maharaj. In fact, third question, Maharaj, the man who is concentrated attains complete success. Maharaj, what does concentration here means? Is it samahita? उसमें word आता है samahita, जिसका मतलब है, according to me, samahita means equanimity of mind, which is the core teaching of Sri Bhagavad Gita, Buddhi Yoga. नहीं, बुद्धि योग डिफरेंट है। समाहित यानी समाधि। Samahita means samadhi. Is it not economic? बुद्धि योग जो है वो प्रिलिमिनरी है। राइट महाराज। हाँ, समाधि होना चाहिए। ठीक है, तो कंसंट्रेशन मींस समाधि। यही तो अभी बात हो रही, सेम थिंग वी आर कंटिन्यूइंग। बुद्धि योग यानी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जी एंड समाहित must get manifested in the mind and in the life. राइट समाधि में ही कंप्लीट सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, श्लोका 369, restraint speech in the manas and restraint manas in the buddhi. This buddhi again restraint buddhi in the witness of the buddhi. Maharaj, how to do that? Who is the witness of buddhi? यच्छेद वाग मनसि प्राज्ञा तद्यच्छेद ज्ञान मानसे ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांतमात्मनि। ये सब जगह बार बार ये 5 लेवल बताते हैं। पहला है
पहली बात समझ लो, सबसे पहले वाणी यानी जो हमारे सेंसेस हैं उनको मन से कंट्रोल करो। राइट राइट। हाँ, तो अब मन कंट्रोल कर रहा है, सेंसेस से बंद हो गए, मन कंटिन्यूअसली चल रहा है, रेस्टलेस है। जी जी। मन को बुद्धि से कंट्रोल करो। बुद्धि जो है निश्चयात्मिका बुद्धि है, डिसाइड कर लिया है। नाउ कंप्लीटली यू आर फुल्ली कन्विंस्ड व्हाटएवर यू हैव टू डू एंड वी आर होल्डिंग ऑन टू दैट। ये बुद्धि योग आ गया, बुद्धि पे कंट्रोल करना। उसके बाद में ये जानना है कि इसके पीछे आत्मा है। ठीक। जो फोर्थ लेवल है ना, वाक मन बुद्धि, उसके बाद पीछे साक्षी आत्मा। जी। बुद्धि के भी साक्षी बनना पड़ेगा। वो कैसे बनना पड़ेगा हाँ, महाराज? वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम बुद्धि से कर सकते हैं। बुद्धि को Right. डिवाइड किया into two राइट राइट। and try to remain at that level. That's all. Nothing more than this you can do. नथिंग। जी। लास्ट क्वेश्चन महाराज। Universe is a delusion from the standpoint of absolute truth, and it's also experienced during the deep sleep. Maharaj, what is experienced in deep sleep, since the mind and buddhi do not exist during the deep sleep? वहाँ पे तो प्योर आत्मा रहता है, तो पर उसको हम तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते ना महाराज। When you get up, you will experience that I was sleeping nicely. अरे अभी तो डिस्कस हुआ ना, प्रत्यभिज्ञा होता है। उस टाइम तो हम इतना ही कहते हैं कि हम सुख से सोए थे, बस और कुछ के सोए थे। कौन भी था, हम भी था और आनंद भी था ना, ये दो बात रहती है ना। जी जी। I was there and bliss was there, ignorance was there. जी, my ignorance was there. Ignorance was there. जी जी। And same thing, without ignorance is samadhi. जी महाराज। बस इधर ओके। स्वामी जी, एक क्वेश्चन है मेरा इसके रिलेशन में। ठाकुर जी ने कहा था कि शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा एक ही है, तो ये कैसे समझे हम? वही तो शुद्ध मन हो गया, शुद्ध बुद्धि हो गया। शुद्ध मन जो होगा तो मन नहीं रहेगा, माइंड विल डिसअपियर। माइंड इज नथिंग बट रेस्टलेसनेस ऑफ continuous changing mind is what is called mind. But when pure, it becomes buddhi. There is no movement. And if purely ho gaya, so that becomes Atman. Very clear. Abhi ye the same thing we were discussing. You control your mind, quieten your mind, just be a sakshi of your mind, and you will realize you become Atman. You're going into deep of it, you become Atman. ठीक महाराज, प्रणाम महाराज। अच्छा, अब कौन बचा है? दिलीप भाई आए नहीं आए? हाँ जी महाराज जी, प्रणाम। आ जाओ भाई, आ जाओ जी महाराज जी। मेरा पहला सवाल है श्लोक 140, द बॉडी, प्राण, ऑर्गन्स, मन, बुद्धि एंड द रेस्ट, with whichsoever of these supervening exertion the mind is associated, the yogin is transformed as it were into that. Maharaj ji, what is the meaning of this श्लोक? क्या है वो श्लोक? 140 का है महाराज जी। महाराज ये श्लोक है 140, श्लोक नंबर 370। बोलो तो क्या है कुंडू? देह प्राणेन्द्रिय मनो बुद्धिया दिवि रूपादिवि योइड योइड वित्तै समायोगस तत्तत् भावो सयोगिनः। हाँ, जहाँ जहाँ पे ये मन बुद्धि इत्यादि जितने हैं, ये जैसा होंगे उसके अनुसार हमारा क्या है, समाधि होती। क्या लिखा है उसमें इंग्लिश में? Yogi is transformed into that. Yes, yogi is transformed into that. योगी क्या होता है? Whichsoever, like he is telling, the body, prana, organ, manas, buddhi, and the rest, with whichever supervening adjuncts the mind is associated, the yogi is transformed into that. हाँ, ठीक है। अब इनका क्वेश्चन क्या है? हाँ महाराज जी, इसका ये श्लोक समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसा है कि अभी आप जब यहाँ पे हमारे से बातचीत कर रहे हैं,
हाँ तो आप एक मुमुक्षु हो गए हैं, एक जिज्ञासु हो गए हैं, साधक हो गए हैं। लेकिन जब आप वकील बन जाते हैं, वहां पर जब विचार करने लग जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं, तब आप जब विचार करने लगते हैं, लॉ की बात करने लग जाते हैं, तब आप वकील बन जाते हैं। हाँ यही बात कर रहे हैं कि जिस जिस के साथ आपका मन संयुक्त होगा, आप वही वही हो जाते हो। ठीक है। बराबर जी। महाराज जी, ये हिंदी में लिखा हुआ है, देह प्राण इंद्रिय मन बुद्धि आदि उपाधियों की जिस जिस व्यक्ति के साथ इस योगी का संयोग होता है, इस योगी का मैंने स्वामी जी, वो उसी उसी भाव के साथ एकाकार हो जाता है। तो मैं यही तो जवाब दिया। तो ये उन स्पिरिचुअल लाइफ के लिए लगेगा ना? नहीं, जिस चीज के साथ में वो लग जाएगा। हाँ। अबे पेट में दर्द हुआ है तो पेट का दर्द का चिंतन करता है, ये शरीर का हो गया, तो वो शरीर के साथ एक हो गया। जी। अब विचार करने लगे तो विचार के साथ एक हो गया, एक हो गया। ये हो जाता। नहीं महाराज जी, अब श्लोक 377, महाराज जी, what Swamiji wants to say by giving up my pride of caste, family and order of life, fleeing to a distance. अरे कौन बोल रहा है पीछे? पीछे बंद करो। श्लोक नंबर 377, giving up thy pride of caste, family and order of life, fleeing actions to a distance. Here, what is the meaning of family for a sannyasi? Because these sloks and other sloks are always addressed for a sannyasi. Because वो डिसाइपल जो है ना जी, वो संन्यास की तैयारी कर रहा है। यस, वो इसीलिए इस बार बार सन्यासी को एड्रेस किया गया। सारा किताब जो है ना, हाँ, वो विवेक चूड़ामणि, ये सन्यासियों के लिए है जी, इसलिए कि ये शिष्य जो है वो धीरे धीरे सन्यास के लिए होगा। हाँ, तो यहाँ पे कहते हैं कि सन्यासी को भी अहंकार हो सकता है जी, और उसके बाद में और उसको टेस्ट का, स्वाद का भी टेस्ट हो सकता है। तो सन्यासी भी जो है कहीं कहीं फंस सकता है, ये बात है। अच्छा जी महाराज जी। जी, now श्लोक 378. Here, fixing the mind firmly on the ideal Brahman and restraining the external organs in their respective centers, with the body held steady and taking no thought for its maintenance. Here, what is the meaning of respective centers and no thoughts for the maintenance? ये मेंटेनेंस क्या है? वो क्या है कि आंख जो है वो आंख में रहे, कान कान में रहे, बाहर की न सुने। देखो फुटनोट में लिखा हुआ है, फुटनोट देखा तुमने? हाँ देखा महाराज जी। Yes, restraining, that is not allowing them to go outward. And other things का मीनिंग लिखा हुआ है, pursuit as means of happiness. This is. तो ऐसा है कि आप आंख तो बंद कर लिया तो आंख बाहर नहीं जाएगी जी, लेकिन कान कैसे बंद करोगे? यस, तो कान भी जो है वो मन से बंद हो जाते हैं। हाँ, मन अगर किसी दूसरी जगह लगा हो, हाँ, किसी अपने बिलवेड के ऊपर मन लगा हो ना, तो कान से भी कुछ नहीं सुनाई देता। बराबर। उसी प्रकार से आत्मा में मन को लगाओ तो सब इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। महाराज ये जो है ना, यहाँ पर ये ध्यान की विधि बताया गया है, तो ये अच्छा, मैंने स्टेप्स में लिखा, बताऊं क्या? हाँ बोलो। पहला जो है, मन को लक्ष्य में ब्रह्म में स्थिर करो, मन को दृढ़ से स्थापित करना है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को सब अपने अपने जगह पे रखो। फिर है निश्चल तन, मतलब स्टिल बॉडी होना चाहिए, थर्ड। और फिर देह रक्षा के, मतलब कुछ खाना है, कुछ है, देह रक्षा की वो भावना को त्याग करो, फोर्थ। और फिफ्थ है ब्रह्म आत्मा एक अभेद ज्ञान, यह प्राप्त करो और उसमें तन्मय हो जाओ। और सिक्स्थ है अखंड वृत्तियां, एक ही वृत्ति रहेगी। और सातवां है सर्वदा आत्म स्वरूप, ये अगर कर लेंगे तो ब्रह्मानंद स्वरूप का रस पान कर सकते हैं।
नहीं, पर ये तो नहीं है तुम्हारा, ये रेफरेंस नहीं है। यही है महाराज, ये जो है ना 378 में ध्यान की विधि लिखी है। एक एक स्टेप के बाद एक एक चीज है। अच्छा अच्छा अच्छा। लक्ष्य ब्रह्मणि मानसम, पहले लक्ष्य को स्थिर करो। दृढ़ संस्थाप्य बाह्येंद्रिय, बाह्येंद्रिय को अपने अपने जगह पे रखो। स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चल तनु, मतलब बॉडी को बिल्कुल स्थिर रखिए, ऐसा। हाँ अच्छा, ठीक है, ठीक। तो यही है क्या विषय दिलीप भाई? यही था ना हमारा? जी जी जी, यही है, ध्यान की विधि है। जी महाराज जी, मैं नेक्स्ट श्लोक नंबर 380। Eat as thy own self, excluding all other thought. It means aham brahmasmi. Am I correct? प्योर ब्रह्म, प्योर आत्मन, ब्रह्म को मत लाओ, वहाँ प्योर आत्मन ही लिया है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर ब्रह्म की बात नहीं की है। अच्छा, तो ये हम ब्रह्मास्मि की जगह सिर्फ प्योर आत्मन आएगा। तुम बोल रहे हो ब्रह्म की बात, यहाँ आत्मा की बात हो रही है, तुम क्यों लाते हो? ओके जी महाराज जी, जी ओके, तो मैं इसको आत्मा कर देता। ओके जी, नाउ श्लोक 384। yes. Here in this slok, the simile given with the sky. Please explain the simile. Slok number 385. It is said a needle. I understand other things, but not a needle. Please explain. अरे सब चीजों के साथ में नीडल भी आ गई। तो कुछ नहीं है उसमें, नीडल की क्यों दिक्कत है? उसको नीडल का अपना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वो तो वस्तु के लिए बोला। यानी कुर्सी भी है तो नीडल भी है, घड़ी भी है, ये सब तो हो गया, तो नीडल भी आ गई और कुछ। अच्छा, ओके, then 386 slok. Here the slok says we have to go beyond Brahma. Means ब्रह्मा यानी जो जगत की सृष्टि करने वाला ब्रह्म। बराबर, yes, actually it is Brahma. Means to realization of oneself, Brahma is a hindrance, Maharaj ji. नहीं, वो ब्रह्मा नहीं, यहाँ पे तो है कि जगत का सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की परेशानी। जी जी, तो ये सृष्टि रचयिता है, वो ब्रह्मा की बात कर रहे हैं। हाँ। तो ये भी हिंड्रेंस है क्या? देखिए ये लिखा हुआ, द लिमिटिंग एक्जिस्टेंस फ्रॉम ब्रह्मा डाउन टू ए क्लम्प ऑफ ग्रास आर ऑल होली अनरियल। यानी ब्रह्मा से लेकर एक घास तक, हाँ, ये सब के सब जो हैं ये बाधाएं हैं, लिमिटिंग एजेंट्स हैं, यानी हमारे ब्रह्म को, हमारे को ब्रह्म में विलीन करने में बाधा हो जाते हैं। इनको हटाओ, इसलिए लिमिटिंग एजेंट्स यानी ये बाधाएं हैं। ओके, लिमिट करता है ना, यानी बाधा करता। ओके, राइट महाराज जी। नाउ 388. The self is Brahma, the self is Vishnu, the self is Indra, the self is Shiva, the self is all this universe. Nothing exists except the self. Maharaj ji, this is an utopian stage. Further, what I understand, the existence of Brahma, Vishnu, Indra and Shiva are and were never there. Is it a myth? Am I correct? यूटोपिया किसको बोलते हैं बाबा? हमको नहीं मालूम। यूटोपिया, यूटोपिया क्या होता है? ये होता है कि जो सपने में घूमता है। नहीं महाराज जी, ये लिखा हुआ है, यूटोपिया इज अनअचीवेबल इमेजिनरी सिचुएशन। यूटोपिया का क्या मतलब है भाई? मेरे को समझ में नहीं आता। यूटोपिया यानी unrealizable situation. Yes, an ideal which is unrealizable and only exists in imagination can never be achieved. अच्छा, तो आपका प्रश्न क्या हुआ? महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये सेंटेंस पूरा लिखा है, द सेल्फ इज ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र एंड द शिव। द सेल्फ इज ऑल दिस यूनिवर्स, नथिंग एग्जिस्ट एक्सेप्ट द सेल्फ। ये नथिंग, ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ये सेल्फ ही एग्जिस्टेंस में है। नाउ माय क्वेश्चन, if it is so, this then the existence of Brahma, Vishnu, Indra, Shiva, all are nothing. It's a myth. देखो दो अलग अलग ढंग से बोल रहे हैं जी।
अगर एक अवस्था में कहते हैं कि सभी कुछ है, साक्षात्कार होता है, तब देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु कुछ नहीं है, सभी आत्मा है। जी, लेकिन अभी नीचे के स्तर पे सभी हैं। अच्छा, तो जब हायर स्टेज पे पहुंचेंगे देन दिस द कुछ नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ सब गायब हो जाएगा, सब सिर्फ केवल सेल्फ रहेगा। जी, ओके। नाउ श्लोक नंबर 392। एक छोटा सा इस सिलसिले में पूछूं? नहीं नहीं, अभी नहीं। महाराज जी, श्लोक नंबर 392 जिसकी नोट पहली है, फर्स्ट नोट, वेर एक्सेप्ट द रेफरेंस इज टू ए चांदोक्य, where one sees nothing else, hears nothing else, knows nothing else. That is the infinite. That is Brahman is the only reality. यहाँ पे ये बता रहे हैं, yes, that is Brahman is the only reality. Note number 2. Note number 2 further says false superimpositions, that is considering the knower, knowledge and known to be the distinct entities. It means it is a daydream. महाराज जी, ये श्लोक पूरा समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी में लिखा हुआ है, यत्र न्यायत वाक्य में क्रियापद के बारंबार प्रयोग से श्रुति मिथ्या अध्यक्ष की निवृत्ति के लिए द्वैत का निषेध करती है। ये हिंदी में उसको तुम बिल्कुल छोड़ दो, दिमाग में मत लाओ। श्लोक नंबर कठिन है, बहुत कठिन है। 392 है। देखा, दिमाग से मत लाओ। किसको महाराज जी ये समझ नहीं आया? छोड़ो। अच्छा सुनो, दुर्भाग्य है, अभी 5 मिनट ठहरो तो मैं 5 मिनट में 2 मिनट मेरे किताब मेरे ऊपर पड़ी हुई मैं लेके आता हूँ। 1 मिनट ठहरो दिलीप भाई। हाँ दिलीप भाई। हाँ जी महाराज जी। कौन सा नंबर श्लोक? 392, श्लोक नंबर 392। हाँ, क्या है? क्रिया भी क्रिया समीभारेण यत्र नान्यदिति श्रुति प्रभृति द्वैत राहित्यम मिथ्याध्यास निवृत्तये, है ना? हाँ जी महाराज जी। अच्छा, इसका प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न है कि उसके नीचे जो नोट नंबर 1 है, जो लिखी हुई, वेयर वन सीज नथिंग एल्स, हियर नथिंग एल्स, नोज नथिंग एल्स, दैट इज द इन्फिनिट, दिस इज ब्रह्मन इज द ओनली रियलिटी। नेक्स्ट, फॉल्स इम्पोजिशंस, that is considering the known, knowledge and known to be the distinct entities। हाँ, ये पूरा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वो ऐसा है, क्रिया भी विहार यानी हुआ है क्रिया समभिहार। क्रिया समभिहार का मतलब होता है कि जहाँ पर कुछ नहीं है, इसको बार बार कहना। तो ये शास्त्र में इस प्रकार का श्लोक आता है, यत्र न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न जिज्ञति, जहाँ पर व्यक्ति न कुछ देखता है, न सुनता है, न अनुभव करता है, वह ब्रह्म है। तो ये यहाँ पर इसी श्लोक में कहा गया है कि स्क्रिप्चर शास्त्र बार बार इस बात को कहते हैं, नहीं 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 नहीं, इस प्रकार से कहते हुए वो कहते हैं कि द्वैत कुछ नहीं है, केवल एक ब्रह्म ही है। तो ये हुआ पहला बात, वेयर देयर इज नथिंग एटसेट्रा। अच्छा, सेकंड पोर्शन क्या है वहाँ पे? उसको कहते हैं कि वो सुपर इम्पोजिशन को दूर करना। सेकंड लाइन पढ़ो तो। false superimposition, that is considering the known, knowledge and known to be distinct entities। हाँ, तो एक तो ये कहा जो कुछ देख रहे हैं सुबह ये सब फालतू है। उसके बाद में दूसरा ये कहते हैं कि जो मैंने देखा, मैं देखने वाला हूँ, और मैं देखने की क्रिया, ये जो 3 बना ली मैंने, अरे ये तीनों भी ये भी नहीं है। अच्छा, तो इस श्लोक में कहा गया है कि इसमें ये है, न अन्य न कुछ देखता है, न सुनता है, न करता है, यानी न देखने वाला है, न देखने वाला है, न सुनने वाला है। यानी इस प्रकार की निषेधात्मक क्रिया वाक्यों के द्वारा श्रुति बताती है कि ये सब कुछ नहीं है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये श्रुति, ये लिखा हुआ है हिंदी के अंदर, क्रियापद के बारंबार प्रयोग से श्रुति मिथ्या अध्यास की निवृत्ति के लिए द्वैत का निषेध करती है।
हाँ यही तो, ये बार बार इस प्रकार की बात कहते हुए जी यानी आज हमने आपने ये बात की, अब कल हम किताब पढ़ेंगे, खाना खाने जाएंगे तभी हम यही बात करेंगे। हाँ 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 अब जी ध्यान करने बैठेंगे तब भी कहेंगे कि अरे ये ध्यान करने वाला कोई नहीं है, ये सब मिथ्या है। हाँ अब प्रवचन हो रहा है, बातचीत हो रही है, इस हाँ बातचीत में भी कह रहे हैं कि न तो बोलने वाला कोई है, न सुनने वाला कोई है, और न हाँ कोई वाणी जैसी कोई चीज है। जी तो बार बार उसी चीज को कहा जा रहा है, ओ ये बताने के लिए कि ये सब कुछ नहीं, केवल ब्रह्म ही एकमात्र है। कुछ ओके जी महाराज जी, राइट। हाँ ये अब ब्रह्म, ये सब मिथ्या बताने के लिए बार बार इसी प्रकार के अलग अलग प्रकार से उसी चीज को कहा जा रहा ओके, हाँ मेरा एक श्लोक 398 है। महाराज जी Where the नेति mind, नेति, हाँ यही नेति नेति है। yes, where the mind functions are merged into the Paramatman, the Brahman, the Absolute. None of these phenomenal world is seen. When it is reduced to mere talk, what is the meaning of this slok, Maharaj ji? जब यहाँ पे क्या है, जब मन जब समाहित हो जाता है, चित्त वृत्तियां परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं दिखता, उसके बाद में विकल्प प्रजल्पमान परिचित है। जब फंक्शन सब शांत हो जाते हैं तब क्या होता है, कुछ नहीं, दिस ड्युअलिटी इज सीन, नथिंग इज इन ड्युअलिटी, देयरफॉर रिमेन ओनली स्पीच। यानी उसके बाद में ये बातचीत मात्र रहती है, कुछ होता नहीं है। यानी क्या, जैसे मैंने खाना तो खाया नहीं, और मैं बकवास कर रहा हूँ कि मैंने बढ़िया खाना खाया, पेट भर के खाया, मिठाई खाई, लड्डू खाई, जलेबी खाई। अरे बात तो हुई नहीं, कुछ खाया तो नहीं, और मैं बोल रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ। उसी प्रकार से जब शास्त्र से आप साक्षात्कार कर लेते हो, जो पूरा लाइन में लिखा है ना सब कुछ, तो उसके बाद जो ये बाकी जो वर्णन इत्यादि है ना, वो आत्मा का वर्णन है, जगत का वर्णन है, मिथ्या, सब ये बातचीत होती है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं होता। अब पढ़ो, फिर से पढ़ो। हाँ महाराज जी, when the mind functions are merged in the Paramatma, the Brahman, the Absolute, none of these phenomenal world is seen. When it is reduced to mere talk. Yes. मतलब ये है कि उसके बाद जब ब्रह्म में विलीन हो गया तो ये जगत दिखाई नहीं देगा, वो सब बकवास हो जाएगा, मियर टॉक यानी बकवास हो जाएगा। हाँ राइट महाराज, करेक्ट जी। वन लास्ट महाराज जी, हाँ महाराज जी मैं कुछ बोलूं? कौन बोल रहा है? सुचरिता। क्यों, अभी तो हो गया, तो ये इसमें क्या प्रश्न, क्यों दिक्कत है क्या? नहीं, इसके बारे में कुछ बोलूं मैं? क्या बोलना है? अभी प्रश्न करना हो तो प्रश्न करूँ, तो बाकी कोई बोलने लग जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दिलीप भाई पहले कंप्लीट करो। महाराज जी मेरा लास्ट श्लोक है 410, 410 विदाउट ए नेम, 410 श्लोक नंबर, विदाउट ए नेम means you cannot express eternal bliss. What you enjoy has no नाम रूप स्वाद आदि कुछ भी नहीं है क्या? इसका मीनिंग क्या यही होगा ना? श्लोक नंबर 410 मैं पढ़ूं क्या? उसमें क्या है, अजर अमर वस्तु स्वरूपम स्थिमित शरीर राशि विहीन शमित गुण विकारम शाश्वतम शांतमेकम हृदय कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्ण समाधो। वो ओल्ड एज नहीं है, बुढ़ापा नहीं होता है, कुछ तब कुछ नहीं होता है, नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, शांति है, तो उसमें समाधि में ये ब्रह्म विद्वान जो है वो ब्रह्म समाधि में आनंद अनुभव करता है। यही तो है। अब प्रश्न क्या है तुम्हारा? तो महाराज जी, what you enjoy has लिखा है without a name means you cannot express eternal bliss. हम कुछ बता ही नहीं सकते क्या? How? Because we cannot express what is the eternal bliss. अरे एटर्नल की बात छोड़ दो, तुमने लड्डू खाया, कैसा था बताओ तो? नहीं बता नहीं सकते। दिलीप भाई लड्डू खाया कैसे, बताओ तो? नहीं महाराज जी, पर हम इसका एक्सप्रेशन तो दे सकते, गोल था, मीठा था, स्वाद अच्छा था। नहीं नहीं, वो था, मीठा था, स्वाद अच्छा था। मीठा यानी क्या होता है? अच्छा, कुछ नहीं समझ में आता।
उसी प्रकार से बोधे बोध ने जो अनुभव हुआ है, दूसरे ने अनुभव किया होगा, मीठा तो वो बता सकेगा। जो ब्रह्म ज्ञानी का अनुभव है वो जो दूसरा ब्रह्म ज्ञानी होगा वो ही बता सकेगा, दूसरा नहीं बता सकता। बराबर। इसमें वर्णन नहीं तो किया यह जा विदाउट सकता। विदाउट द नेम का मीनिंग क्या महाराज जी? सिर्फ मेरा इतना छोटा सवाल। विदाउट नेम, विदाउट ए नेम, ये लिखा हुआ अजर अमर आभास वस्तु से सीमित शरीर राशि प्रख्यम आख्या विहित, उसको नाम नहीं दिया जा सकता। ये आत्मा नाम हमने दे दिया, ये ब्रह्म नाम हम देते हैं, उसमें सच पूछा जाए नाम क्या दोगे उसको? अच्छा, जी जी, उसका नाम नहीं होता जी, वही right. भर है। ओके, बस महाराज जी प्रणाम। अच्छा, हो गया सबका? महाराज क्या हुआ नहीं, मैंने प्रश्न तो भेजा था बहुत पहले, सोमवार को ही भेजा था मैंने। नहीं, आपका प्रश्न आया ही नहीं मेरे पास। मैंने भेजा था महाराज जी, आप I did मिस not कर। get any question of yours. नहीं महाराज जी, मैंने आपको भेजा था 14 अगस्त को। Then I did not receive it. 48 मिनट्स में आपको मिला था। एनीवे आपको आपने कीप कर तो हो महाराज जी। आपने अभी मैं क्वेश्चन को पूछूं क्या? Only 5 minutes are there, then I have to go. Today there is another program. ओहो, 10:40 सुनिए, आपको सब लोगों को बता दूं, 10:40 पे रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी में, यहीं पे यानी नेक्स्ट आश्रम में, I will take about 10 minutes to go and settle down. 10:40 में एक यूथ प्रोग्राम हो रहा है, उसमें मेरे को आधे घंटे तक बोलना है और क्वेश्चन आंसर यूथ से करना है, and that will be on YouTube. तो YouTube का एड्रेस होगा रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी। ठीक है महाराज जी, उस पे आप मेरे को सुन सकेंगे। आई विल टॉक अबाउट मैन मेकिंग एजुकेशन और रियलाइजेशन ऑफ वंस ओवर नेचर, यानी आत्मा का, स्वामी विवेकानंद जो कहते थे ना कि मैन इज डिवाइन, उन सब के ऊपर आई विल टॉक अबाउट। ओके, ठीक है महाराज जी, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा तो करो करो करो, जल्दी करो। सब क्वेश्चन का हो गया, खाली एक क्वेश्चन में चुन लेता हूँ। यह बोला गया क्वेश्चन नंबर, वर्स नंबर 395 में, मैं क्विकली इसको ले लेता हूँ। वर्स नंबर 395 में जो बोला गया उसमें एक चीज बताया गया, तो मैं पढ़ूं क्या वर्स नंबर 395 या क्वेश्चन में डायरेक्टली चले जाऊं? बोलो 395 क्या है, बोलो। First, destroy the hopes raised by egoism in this filthy gross body. Then do the same forcibly with the air-like subtle body, and realizing Brahman, the embodiment of eternal bliss, whose glories the scripture proclaim as thy own self. Like, live as Brahman. My question is, how to destroy forcibly with the air-like subtle body? जही मलमय कोश अहम थी, हाउ टू डिस्ट्रॉय the forcibly with the shuttle body सटल बॉडी, लिंग देहे पे पश्चात। पहले यानी क्या है, यानी डिस्ट्रॉय डिजायर वायलेंट मलमय कोशे अहम थी उत्ते आशाम प्रसभ मह निलय तेंग। मतलब यह है कि पहले हमारे स्थूल शरीर के अंदर हमारी जो आशाएं बनी हुई हैं, हमारी इच्छाएं बनी हैं, मैं खाऊंगा, मैं दूसरे स्थान पर जाऊंगा, मैं इंद्रियों से सिनेमा देखूंगा, ये जितनी आशाएं हमारे स्थूल शरीर की हैं उसको दूर करो। उसके बाद में प्रसभम अनिल कल्पे लिंग देह सूक्ष्म शरीर, यानी हमारे मन में जो इच्छाएं हैं उनको दूर करो। एक तो स्थूल शरीर की इच्छाएं होती हैं, दूसरी कहते हैं सूक्ष्म शरीर की। सूक्ष्म शरीर यानी मन, मन सूक्ष्म है तो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं ना मन को। तो सूक्ष्म शरीर की कितनी इच्छाएं हैं, सैकड़ों अनंत इच्छाएं भरी हुई हैं उसमें, उसको भी दूर करो। कैसे? निगम गदित कीर्ति नित्यम आनंद रूपम स्वयं इति परिचीय ब्रह्म रूपेण तिष्ठा। कैसे दूर करो? शास्त्र में जो लिखा है कि मैं आनंद मूर्ति हूँ, मैं ब्रह्म हूँ,
इस प्रकार चिंतन करके अपनी इच्छाओं को दूर करो। समझ Okay, में thank आया? Thank you, Maharaj ji. Thank you. Pranam, Maharaj ji. Pranam. अच्छा भाई, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। हो गया। थैंक यू। So Pranam, you are still invited if you can join रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी का लिंक पे चले जाना, वो आपको बता दे। महाराज शांति मंत्र। ओम शांति शांति हरि ओम राम कृष्ण अर्पणमस्तु।